हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। जी हाँ, अब टाइम हो गया है कि हम आपको अपने गेस्ट के साथ मिलवाएं कुछ एंटरटेनमेंट और कुछ ऐसी बातें जिससे कि आप अपनी लाइफ में कंप्लीट हार्मनी, पीस एंड वेल्थ हेल्थ तो ला ही सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वास्तु कंसल्टेंट रीवा कुमार की, जो हर मंडे को हमारे साथ शामिल हो जाती हैं विथ हर वंडरफुल टिप्स एंड विथ हर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। शी हेल्प्स ऑल आवर लिसनर्स and she enhanced our lifestyle. Well, what makes her different from other Vastu consultants? There's some point she is different in her expertise. She has more than 25 years of experience and she has deep knowledge of 5 basic elements and their effects. And she has ability to find very subtle defects in place, building, environment that's causing problem. Correction of, she also correct the Vastu defect without demolition, which is the best part for people who are living in states where to change, make a or just to renovate the house is not an easy thing, with so many dimensions involved to it and so many legal requirements. Without making major changes in your structure, she can help you with your Vastu defects. She can sense all negative and positive energies in a building structure. She has ability to identify the geopathy in your piece of land. And more than that, she has practical approach including logic and scientific touch, which can help you to go further in your life and with your goals, and you can accomplish them within short period of time. These speciality distinguish her from other Vastu expert and consultant. So contact Riva Kumar if you have any questions or any concern related to Vastu in your office, in your personal life, in your home or in your business. The number to reach her is 510-868-3338. Right now she is in studio with us. After discussing today's topic, she would be happy to answer your questions and take live calls. So stay tuned and enjoy, and let's welcome Riva Kumar. हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू रेवा जी। गुड इवनिंग शालिनी, और हमारे सभी लिसनर्स वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कि जैसे शालिनी ने बोला कि दिसंबर का मंथ लग गया है, दिसंबर के साथ साथ 2013 की भी तैयारी शुरू हो गई है। और जहां तक मैं लगती हूँ कि खूब जब वीकेंड पे देखो तो इधर उधर एवरीवन इज बिजी विद योर फैमिलीज, खूब शॉपिंग करने में, क्रिसमस के लिए, न्यू ईयर का वेलकम करने के लिए और 2012 को बाय बाय करने के लिए भी। पर साथ ही साथ मैं इतना भी जरूर कहूंगी कि कहीं पे भी थोड़ी सी भी नेगेटिविटी अगर आपके अंदर या आपके सराउंडिंग्स में या आपके ऑफिस या आपके एनवायरनमेंट में है, तो उसको भी 2012 के साथ गुड बाय जरूर कर दीजिएगा और तैयारी करिएगा 2013 के लिए। अभी से ही प्लान करेंगे, अभी से ही पॉजिटिव एनर्जी को लेके आएंगे। कहते हैं ना कि रेवा हमेशा कहती है लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ, सही डायरेक्शंस को लेंगे तो रेवा कुमार या ये वास्तु को अगर आप अपनी लाइफ में लेके आइए, सही डायरेक्शंस की तरफ जाइए और अपनी लाइफ को भी पूरा पॉजिटिव बनाइए और 2000 के वेलकम के लिए बहुत ही जोश के साथ पीसफुली और अच्छा लेके उसको स्वागत करें। And thank you so much. Once again, listeners, I am talking to Vastu consultant Riva Kumar, and the number to reach her after the show is 510-868-3338, because I get tons of calls कि मैं इतने fast phone number बोलती हूँ कि उन्हें नहीं मिला. And more importantly, visit her website where she posts her regular blogs, her experience, her knowledge, and her wonderful tips. And her website is divinevastu.net. So don't forget to visit her website. If you can, if you missed the show and if you want more information, do visit her website and get the valuable information. And she has her recorded archive show. All her TV and radio shows are up there, so you can get benefit of those. And Revaji, as you said, that 2012 is going, and we are ready to say goodbye. And with the full energy, full enthusiasm, we are ready for 2012. 2013 जी हाँ, वापस जा रही हूँ मैं। Well, अब आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि how we can achieve peace. Sometimes everything we have, money, honey, prosperity, business, job, health, everything is there, and kids, whatever a normal person can dream of. मैंने बोला आम आदमी, भाई आम आदमी से beyond तो आप बहुत सारी चीजें चाहते हैं, and there is no end for the needs, but you don't have that peace and harmony, and you can't relax. You still want, you don't know what is missing out of your life. Though अगर आप आम इंसान की नजरों से देखो, everything is there. So is there anything Vastu can do about it, or is it something related to Vastu, or it's just it's your heart which cannot take the peace? What is that? शालिनी, अगर पीस का है ना, तो पीस के लिए मैं इतना कहूंगी दैट द एसेंस ऑफ
ट्रू हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। जी हाँ, ये एक ऐसी खुशबू है, इतनी मीठी मीठी सुगंध है ये, कि जिसको हर कोई आम आदमी से लेकर हर इंसान, पूरा यूनिवर्स इसी पीस को, इसी एसेंस को हम अपने जिंदगी में चाहते हैं सही मायने से। मैं तो यही समझती हूँ, मेरा तजुर्बा भी यही कहता है कि पीस है तो आपके पास में सब कुछ है, और अगर ये नहीं है, ये एनर्जी हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास कुछ नहीं है। और पीस किससे रिलेटेड है? शांति, पीस ऑफ माइंड। बिल्कुल, हमारा दिमाग में अगर शांति है तो होना चाहिए पीस एट हार्ट। दिल में बिल्कुल शांति, एकदम ठंडक होनी चाहिए। शरीर में पीस एट बॉडी मीन्स कि हेल्दी, खूब हेल्दी हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो। पीस विद सोलमेट, वो तो जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा। कहते हैं ना कि पहले जमाने में 16 साल में, 18 साल में लड़की की शादी कर देते थे। जब शादी करते थे तो उसके बाद की उसकी पूरी जिंदगी अपने सोलमेट से, अपने पार्टनर के साथ गुजरती थी। तो वही होता है पीस, कि आधी से ज्यादा जिंदगी हमने अपने पार्टनर के साथ गुजारनी होती है। नेक्स्ट होता है पीस विथ फैमिली, पेरेंट्स के साथ में, फादर है या मदर है, उनके साथ भी पीस होना बहुत जरूरी होता है। चाहे हमारी शादी हो गई हो तो भी, या शादी नहीं हुई है तो भी। तो इन चीजों को अगर आप पीस को लेकर जाते हैं, जिसको मैं कहती हूँ कि एसेंस है, एक खुशबू है, अगर ये आपके पास में है तो शालिनी, हमें कहीं पे भी कोई ऐसा स्ट्रेस हमारी लाइफ में नहीं रहता। बाकी सब चीजों को हम, छोटी मोटी वार को, छोटी मोटी नेगेटिविटी को हम बहुत इजीली झेल लेते हैं। तो पीस ऑफ माइंड के लिए क्या करें? सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू वास्तु, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, कहते हैं ना कि आपको लॉजिक लेना है कि हर डिसीजन को, कई बार हमारा मन कुछ कहता है, दिल हम कुछ कहते हैं। जब हमारे दोनों पार्ट्स में ऐसा कोई क्लैश होना चाहता है तो हम उस अपनी शांति से उससे अलग होते हैं। इट मीन्स कि वी हैव टू सी कि कहीं हमारे नॉर्थ पोल से जो हमारी एनर्जी आती है, दैट इज रिलेटेड विद आवर ब्रेन, अगर वहां हम नॉर्थ डायरेक्शन में सो रहे हैं सर करके, तो वो हमारे को कभी भी पीस ऑफ माइंड नहीं आने देगा। मीन्स कि आपका दिमाग दो तरफ चलता रहेगा, कभी सोच नहीं पाएंगे। दैट्स वाई वी ऑलवेज एडवाइज यू कि आप सोते समय कभी भी नॉर्थ की तरफ सर करके नहीं सोएं, ना ही बीम के नीचे बैठें। अवॉइड सिटिंग अंडर द बीम ऑल्सो। कई बार ऐसा होता है कि हिडन बीम्स होती हैं या फॉल सीलिंग होती हैं, तो दैट इज ओके, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं जो आपको विजिबल नहीं है। बट इफ देयर इज अ बीम एंड यू आर स्लीपिंग अंडर द बीम और यू आर सिटिंग अंडर द बीम, तो वो आपको बेवजह का पीस ऑफ माइंड आपका गवा देता है। पीस एट हार्ट मतलब होता है कि शांति। कई बार जैसे बेवजह, कई बार आप ड्यू टू फेलियर्स या डिसअपॉइंटमेंट्स आपकी लाइफ में आ जाती हैं, या जेलसी भी, बिट्रेल्स, इन सब चीजों से हम कह सकते हैं कि हमारा मन जो होता है बहुत बेचैन होता है। अगर कहीं ऐसी नेगेटिविटी आती है तो ऑलवेज चेक कि कहीं साउथ वेस्ट पार्ट का जो आपका वहां ज्यादा ओपनिंग्स तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है आपके घर के साउथ वेस्ट की तरफ में ज्यादा विंडोज हो, डोर हो, जिनको आप 24 घंटे खुला रखते हो। ये सोचते हो कि चलिए हमारा तो साउथ की तरफ में बैकयार्ड है, क्यों नहीं, मौसम ठंडा ठंडा हो रहा है, धूप ले लें हम लोग, सनलाइट आ रही है, चलिए सनलाइट लेना बुरा नहीं है, इट्स वेरी गुड। लेकिन अगर आप साउथ वेस्ट की विंडो को बंद करके अगर साउथ ईस्ट की विंडो को ऐसा लाइट लेने की कोशिश करेंगे तो आप इस स्ट्रेस से भी बाहर आ सकते हैं। पीस एट बॉडी मीन्स कि हेल्दी। जी हाँ, हेल्थ होना बहुत अच्छा होता है। कई बार हम कहते हैं कि हमारी बॉडी पेन्स हो रही हैं, या बार बार बेवजह ही हम हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहे होते हैं, ह्यूज मेडिकल बिल्स जो यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी लेकर आते हैं। तो इनसे क्या होता है कि वी आर नॉट गेटिंग द पीस। कई बार होता है शालिनी, ऑलवेज रिमेंबर कि पूरा यूनिवर्स इज फुल ऑफ सब्टल एनर्जीज। नॉर्थ पोल एनर्जी, मैग्नेटिक, अर्थ ग्रेविटेशनल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विच कैन नॉट बी सीन बट सेंस्ड। वो एनर्जीज हमारे को दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन वी कैन डू सेंस देम। तो उस समय अगर वो ऐसी कोई सब्टल एनर्जीज में प्रॉब्लम आती है तो उससे क्या होता है कि हमारी जो हेल्थ है वो खराब होती है। जस्ट लाइक कि टॉयलेट और किचन, अगर ये दो चीजें हमारी कहीं पर भी गलत डायरेक्शन में होंगी तो ये साथ प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं। साथ ही साथ इरेगुलर शेप्स ऑफ प्लॉट्स, हमेशा याद रखिए कि अगर हमारे प्लॉट्स की शेप इरेगुलर है और या कट्स हैं, माइनस है या मिसिंग है, तो वो भी हमारी बॉडी में कई तरह से अनरेस्ट लेकर आते हैं।
So these could be like they can contribute to your peace and harmony. हाँ, अगर रेस्ट रूम हमारा नहीं है, सही जगह के ऊपर में नहीं है, या किचन हमारी सही प्लेस में नहीं है, तो वो आपकी बॉडी पे कहीं ना कहीं ऐसे इफेक्ट डालती हैं. देन पीस विद साउलमेट, जैसे मैंने आपको बताया कि हर बारी हम कई बार कहते हैं कि हमारा पार्टनर के साथ में सब कुछ ठीक है, ही इज हैंडसम, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, पर फिर भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा चलता रहता है और वो बात बहुत बिगड़ भी जाती है. अगर कहीं ऐसा है, कैसे कह सकते हैं कि क्लैशेस, बेवजह की हॉट आर्गुमेंट्स हो जाना, तो अगर कहीं पर अंदर की घर की पिक्चर्स में या रूम कलर्स हमारा ठीक नहीं होगा, या रूम घर की एंट्रेंस जो है वो भी बहुत मैटर करती है, अगर वो ठीक डायरेक्शन पे नहीं होंगी तो आपको अपने पार्टनर के साथ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रह सकती हैं. तो उसमें हमने किचन के साथ साथ क्या ध्यान रखना है, वो है कि आपका जो मेन एंट्रेंस ऑफ द डोर वो हमारी कहाँ है, उसकी तरफ जरूर ध्यान दें. एंड यू जस्ट मेंशन दैट साउथ वेस्ट आपका ज्यादा खुला है, तो इट कुड कंट्रीब्यूट टू कर सकता है सम नेगेटिव एनर्जी, विच कैन थॉट प्रोसेस आपका डिस्टर्ब हो सकता है, एंड अननेसेसरली थॉट्स पोर इन होती हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु. इफ द साउथ वेस्ट इज अगर लॉट्स ऑफ ओपनिंग्स आर देयर, विंडोज हैं, तो उसको आप अवॉइड करिए. यू कैन कीप इट कवर्ड लाइक ब्लाइंड्स डाल लो, कर सकते हैं. हमने बताते हैं कि अगर साउथ वेस्ट की तरफ में अगर हो तो दे पीपल कैन गो फॉर वुडन ब्लाइंड्स, जो रोज वुड की होती हैं. वुडन ब्लाइंड्स को लगाएंगे, लाइट भी आएगी, लेकिन उसके साथ में वुड भी अपनी जगह पर आ जाएगी, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है साउथ की तरफ में. तो अगर हम वुड को पूरा नहीं कर सकते तो अगर वुडन ब्लाइंड लगाएंगे तो वो भी हमें बहुत हेल्प करता है. वुड को आपने जगह दे दी, आप उसकी नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है पीस विथ योर पेरेंट्स, फादर और मदर. बहुत कहते हैं दिस इज अ वेरी प्योर रिलेशनशिप, और आज के समय में भी क्या हमेशा हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर कहीं पे भी जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा ही उनमें जो ईगो की आती है ना, उसको आप खत्म कर सकते हैं अगर आपका वास्तु प्रॉपरली है. मीन्स कि अगर कहीं पर आप देखेंगे कि अगर नॉर्थ इज हायर देन साउथ, तो ऐसे आपस के रिलेशन में बिटरनेस आ जाती है. पेरेंट्स के साथ में बिटरनेस आएगी तो कह देना कि अगर शादी हो गई तो बेचारी लड़की की प्रॉब्लम आ जाती है. हाँ जी, डॉटर इन लॉ आ गई तभी हमारे इस प्रॉब्लम्स आ गई हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. आप थोड़ा ध्यान दें, कहीं नॉर्थ आपका हैवी तो नहीं जा रहा, या आपका ईस्ट हैवी तो नहीं है. अगर नॉर्थ और ईस्ट हैवी है तो साउथ और वेस्ट अगर कम हो जाएगा तो आप पेरेंट्स के साथ में आपके रिलेशंस में बिटरनेस आएगी. तो ऑलवेज ट्राई कि आप साउथ वेस्ट जो है वो हमारे पास में हेड ऑफ द फैमिली, अगर आपके पेरेंट्स हो उनको साउथ वेस्ट में आप ले जाइए और आप उनके साथ साउथ डायरेक्शन को साथ में यूज करें, तो आप बहुत ही तरीके के साथ में मिठास, पीस अपनी जिंदगी में खुद ही ला सकते हैं. ये डायरेक्शंस इतनी पावरफुल होती हैं डियर लिसनर्स. मैं आपको एक बात बताती हूँ, इन डायरेक्शंस के बीच में मैं हमेशा विजिट करती हूँ, रेगुलर विजिट करती हूँ. अगर विद इन 2 years देखो तो मेरी आज की डेट में मैं अगर आपको अपने विजिटर का बताती हूँ 493. मैं आपको चेक करा सकती हूँ, अगर कोई भी देखे 493 है मेरे पास में आज का. मैंने 2 years में विजिट किए हैं घर पे, और जहां पर 493 अगर मेरे विजिटर लिस्ट में आते हूँ तो शालिनी उसके बीच में डायरेक्शंस का मैंने जो रिजल्ट्स देखे हैं कि अगर कहीं पे भी डायरेक्शन एक्सटेंडेड है तो रिलेशंस बहुत ज्यादा हमारे खराब करती है. तो उसको अगर आप चाहते हैं इन सब चीजों को, सुख और शांति को अपनी जिंदगी में लेकर आने के लिए, तो मैं तो यही एडवाइस करूंगी कि आप इन डायरेक्शंस को जरूर फॉलो अप करें. Thank you for sharing your experience with us and the statistics too. That is a big number. आपने बोला ये तो आप रेजिडेंशियल से बता रहे हैं, बिजनेसेस आर सेपरेट फ्रॉम देयर. ये वो 493 रेजिडेंशियल बताए हैं. बिजनेस का जो है वो मेरा है 222. 3222 मेरा आज की डेट पे कंप्लीट हुआ है. Oh wow, that's good and that's a big number, and I'm sure that people are seeing positive result and they're very happy with your work, and I've heard so many testimonies and I get emails too कि आप ही नहीं कि आपके शो पे आप रेवा कुमार कहलाती है. I get thanks, I get partial credit for bringing you. उससे भी ज्यादा मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं जाती हूँ तो मुझे उनका मालूम चलता है कि उनके बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं. कि जैसे कि जब हमारे पेरेंट्स हमें पिक करते हैं, उनकी मदर पिक करती है, तो वो लोग उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं.
And listeners, once again, I'm talking to Vastu consultant Reva Kumar. If you have any question related to Vastu or any queries, don't hesitate to call her at her number 510-868-3338 and do visit her website where she posts regular blogs with her experience and knowledge and wonderful tips, and she has topic for every single week, and which is divinevastu.net, and you can also see her archived TV and radio shows on her website. So Reva ji, moving forward, fish aquarium के बारे में कुछ बताइए कि fish aquarium बहुत सारे लोग रखते हैं, एंड उसके लिए आप बताइए फिश एक्वेरियम के बारे में क्या कर सकते हैं. एंड बिफोर दैट, रेवा जी वुड लाइक टू गो फॉर अ सॉन्ग ब्रेक. वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग ऑफ 2012 आई वुड लाइक टू प्ले. आपने 2012 बोला, मैंने 222 अपने विजिट्स का बोल दिया. सो वेल, सारे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी दे आर लाइंड अप. Enjoy and stay tuned. We'll be right back after this one of the most romantic song of 2012, GHR. Welcome once again. You are listening to Shalini and Reva Kumar on चलते चलते. जी हाँ, अभी मैं बात कर रही थी वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार जी से, और this song blew me away. Well, I am in different worlds, sadly romantic, but one of the most beautiful song I loved. Well, 2011 का था, मेरे मुंह से 2012 निकल गया, but that's okay यार, मैं तो मिक्स अप हो गई हूँ नंबर से. 2013 आ रहा है, 2011 का ये गाना था, 2012 में हम है ना कंफ्यूजन. वेल, लेट्स गो बैक टू रेवा कुमार. और अगर आप भी चाहते हैं कि उनसे कुछ सवाल करें, ऑफलाइन कॉल्स आने लगी हैं, तो रेवा जी तो हमारे साथ हैं ही, और अगर आप चाहते हैं आप अपने वास्तु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें तो स्टूडियो लाइन्स आर ओपन 510-770-1550. दो आई हैव बंच ऑफ क्वेश्चन एंड आई वुड लाइक टू गेट माई फैक्ट स्ट्रेट, बट अगर आप चाहते हैं कि बीच में आप सवाल कर लें तो यू आर मोर देन वेलकम एंड शी वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन. 510-770-1550. रेवा जी, लेट्स गो बैक टू फिश एक्वेरियम. या ये सवाल मेरे लिए पर्सनल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चन होता है, कितनी फिशेज रखनी चाहिए, उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए फिश एक्वेरियम की. आई एम क्यूरियस टू नो, अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल, व्हाट इज द राइट लोकेशन फॉर फिश एक्वेरियम टू बी इन द हाउस? शालिनी, मैं बताऊं, पहले तो ये कि फिश एक्वेरियम को अगर आप सही तरह से मेंटेन करके रख सकते हैं तो दैट इज वेरी गुड. किसी भी तरह का अगर हमारा कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं इफ यू आर हैविंग अ फिश एक्वेरियम. फिश एक्वेरियम जिसमें हम इसकी शेप के ऊपर में बहुत डिपेंड करता है. साथ ही साथ अगर कई बार होता है कि फिशेस बहुत ज्यादा अगर मर रही हैं तो इसका मतलब एक तो होता है कि हम उनकी केयर नहीं कर रहे, कि वाटर का केयर नहीं कर रहे, रिप्लेस नहीं कर रहे, या उसमें मेडिसिन है या फूड नहीं, हम फीड नहीं कर रहे उसको, उसकी वजह से तो वो तो उसको कह सकते हैं कि आप केयरलेस हैं, इसलिए नहीं आप करें, तो उसका कोई फायदा नहीं आप उसको अगर रख रहे हैं तो. सेकेंड है कि कई बार अगर फिशेस मर रही है तो आपको ये सोचिए कि कहीं ना कहीं उस घर की नेगेटिविटी को वो अपने ऊपर से लेके जा रही हैं. लेकिन अगर वो मर रही हैं तो ऐसा भी नहीं है सॉरी कि अगर वो मरी हैं तो उनको हम मरा रहने दें. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि लिसनर्स, कि जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस में अगर हम किसी दौर से गुजर रहे हों तो हम उसको फिश एक्वेरियम को रख सकते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर आपको देखना होगा कि क्या वो हमें सूट भी कर रहा है कि नहीं. फिश एक्वेरियम अगर आप घर पे रखते हैं तो बिजनेस के लिए, वर्क और ऑफिस, खासकर रेस्टोरेंट्स के लिए तो ये एक बहुत ही अच्छा जरिया है. बेस्ट वास्तु में हमारे इसको माना जाता है. फिश एक्वेरियम को अब शालिनी आपने पूछा कि डायरेक्शन है. फिश एक्वेरियम जिसमें वाटर टैंक भी होता है, वाटर भी होता है, उसको हम साउथ वेस्ट में रख सकते हैं. ओके, यू सेड साउथ वेस्ट, बट आपके अर्लियर जो कॉन्वर्सेशन है मुझे उससे याद है कि आपने ये बोला था वाटर एलिमेंट शुड नॉट बी इन द साउथ वेस्ट, पर एक्वेरियम में तो वाटर होगा. आपने तो शालिनी मुझे बीच में से ही पकड़ लिया, पहले मुझे बात तो कर लेने दीजिए. मैं ये कहना चाहती हूँ कि साउथ वेस्ट, बिल्कुल साउथ वेस्ट हमारा वाटर एलिमेंट नहीं है, अर्थ एलिमेंट है, और ये ऐसे हमेशा मैं कहती हूँ कि वहां पे वाटर नहीं होना चाहिए. पर आप ये देखिए टैंक में पानी है और वो भारी होता है, मींस कि आप साउथ वेस्ट लिविंग रूम, ड्राइंग रूम के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखें. घर का साउथ वेस्ट नहीं, घर का साउथ वेस्ट जहां आपका मास्टर बेडरूम है या आपने कोई और रूम बनाया हुआ है, मैं उसके नहीं कह रही हूं. एकदम जब हम घर के अंदर आते हैं या हमारा वर्क या बिजनेस प्लेस में हम एंटर कर रहे हैं, उसका जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है वहां पे रखें. किस लिए रखें? उसको भारी करने के लिए. क्योंकि अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में वाटर एलिमेंट के लिए आपको एक
अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स कहती हूँ, तो मीन्स कि नॉर्थ ईस्ट में पानी होना चाहिए। अगर हमको डिग करना है या अगर हमको पानी की बॉटल्स रखनी है, वहां पे हम रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने शालिनी कभी देखा होगा कि कहीं इंडिया में या दूसरी जगह में कई लोगों का वाटर टैंक होता था तो ऊपर करके रखते हैं स्टेयर्स, घर के जो भी आपका ऊपर का टेरेस पे, तो वो साउथ वेस्ट में एडवाइज किया जाता है ताकि साउथ वेस्ट भारी हो जाए। और वही वाटर टैंक अगर आप साउथ वेस्ट में नीचे डिग कर देंगे, अगर अंडरग्राउंड अगर उसको टैंक को रखेंगे, तो आपको पूरा नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। वाटर टैंक है, देखिए अब वो वाटर साउथ वेस्ट में मना किया जा रहा है नीचे डिग करने के लिए, और वही वाटर टैंक आपको साउथ वेस्ट में टेरेस में ऊपर रखने के लिए कहा जाता है ताकि साउथ वेस्ट आपका हैवी हो जाए, आपको स्टेबिलिटी दे। इसी तरह से फिश एक्वेरियम का जो वाटर टैंक है वो आप लिविंग रूम, अपना ड्राइंग रूम जिसको लिविंग रूम कह सकते हैं, वहां पर अगर आप उसके साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखते हैं तो बहुत अच्छा है। साथ ही साथ ताकि अगर हम घर में हमारे गेस्ट आ रहे हैं या कोई भी आ रहा है तो इमीडिएटली उसकी नजर पड़नी चाहिए उसके ऊपर में, ये नहीं उसको हिडन रखें। साउथ वेस्ट में रखेंगे, सामने उसकी नजर पड़ेगी, कोई भी एविल कह सकते हैं, कोई भी नेगेटिविटी एनर्जी होगी वो खत्म हो जाएगी। अब आपको कितनी फिशेज रखनी है ये भी ध्यान देना चाहिएगा। ऐसा नहीं है कि आप छोटा सा ले लिया कि आपको एक खिलौने की तरह यूज कर रहे हैं, नो, वो आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। टू गेट द पॉजिटिव अच्छे रिमार्केबल रिजल्ट्स के लिए आपको उसके बीच में 9 फिशेज होनी जरूरी है, जिसको 8 गोल्डन फिशेज कहा जाता है, एक हम उसको ब्लैक फिश भी, ड्रैगन फिश भी रख सकते हैं। लिटरली 9 फिश ही होनी चाहिए, अगर उससे कम है तो नो। Oh my God, I have to in my house. 9 फिशेज जरूर होना चाहिए, इसको आप ध्यान लेकर 9 फिशेज से कम नहीं होनी चाहिए। 8 फिशेज आपकी गोल्डन होनी चाहिए, एक फिश जो है आपकी ब्लैक होनी चाहिए, जिसको चाहिए इसको ब्लैक ड्रैगन फिश कहते हैं। And once again, listeners, I'm talking to Vastu consultant Reva Kumar. I would like to give her information, but she is ready to answer your question on air. If you have any question related to your Vastu needs, give us call at studio number 510-770-1550. But अगर आप चाहते हैं शो के बाद भी उनसे बात करना, तो number to reach her is 510-868-3338. And let's take some callers and see what questions they have for you, Reva ji. Hello, you're on air with Reva Kumar. नमस्ते रेवा जी। नमस्कार जी। मैं हमेशा आपका प्रोग्राम सुनती हूँ और आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम नहीं होना चाहिए जी, और हमारे घर में वहीं पे बाथरूम है मेन। और जी हाँ, बताइए। मतलब उसका क्या करें, क्योंकि उसी में शावर का मेन वही है और वो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है। देखिए नॉर्थ ईस्ट में अगर शॉवर के लिए है दैट्स गुड, लेकिन उसमें टॉयलेट सीट की वजह से हमारे को प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि वो एरिया जो है उसको हम जुपिटर भी कहा जा सकता है, ब्रेन के साथ भी रिलेटेड होता है और नीट और क्लीन होना चाहिए। तो अगर आप टॉयलेट सीट जहां आपका है वो अलग उसके कॉर्नर में आता है, तो मैं आपको उसकी रेमेडी बताना ज्यादा ठीक समझूंगी। हाँ ऐसा ही है, वहाँ पे टॉयलेट बिल्कुल मतलब उसी बाथरूम में और बीच में है उसमें हाँ। डोर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? जहाँ आपका बाथटब के साथ नहीं, वो एक पूरा बड़ा बाथरूम है, उसमें बाथटब एक्सट्रीम कॉर्नर पे है और फिर टॉयलेट राइट इन द मिडल ऑफ द बाथरूम। ओके, जहाँ पे टॉयलेट का आपका WC है, इसका मतलब उसका अपना इंडिविजुअल डोर, इंडिपेंडेंट डोर नहीं है उसका, नहीं वहां पे नहीं है। तो आपको फिर जो रेस्ट रूम आपका है उसका आपको पूरे का रेमेडी करना होगा। आप उस रेस्ट रूम का जो डोर है उस डोर को आप तो सबसे पहले तो एक अंदर जो भी एग्जॉस्ट फैन हो, जितना आप उसको खुला रखेंगे, ऑन रखेंगे उतना अच्छा है। परफ्यूम, जितना रूम फ्रेशनर भी ले सकती हैं, जितना रूम फ्रेशनर आप रखेंगी दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। थर्ड रेमेडी आपको मैं वहां के लिए दूंगी सॉल्ट के लिए। आप वहां पर सी सॉल्ट को, जिसको रॉक सी सॉल्ट भी बोलते हैं, छोटे से किसी भी आप कंटेनर में आप उसको जो पॉट है टॉयलेट सीट के पास नीचे रख दीजिए और उसको एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक उसको फ्लश में डाल के फिर दोबारा उसमें आप सॉल्ट रखा करें। अच्छा, टॉयलेट के नीचे, जहाँ टैंक के नीचे? हाँ जी, टैंक के नीचे वहां पे रखिए। और टैंक के ऊपर में आप 3 बैम्बू स्टिक का रेड रिबन का, जो चाइनीज प्लांट होता है, बैम्बूज का लाइव प्लांट होता है, उस पर रेड रिबन बांधकर एक पैनी डाल के उस वाटर टैंक के ऊपर रख दें। अच्छा, सिर्फ एक पैनी डाल के? हाँ जी, एक पैनी डाल के 3 स्टिक्स का लीजिएगा, उस पर रिबन बांधकर एक पैनी डाल के आप वाटर टैंक के ऊपर में जो है उस पर रख दीजिए और नीचे की तरफ में रॉक सी सॉल्ट को रखें। अच्छा, थैंक यू सो मच। वेलकम। Let's take another call. Hello, you're on air with Reva Kumar.
हेलो जी मुझे रेवा कुमार से एक क्वेश्चन था आपसे। जी हाँ बताइए। जी मैंने अभी एक नया घर लिया है जिसकी फेसिंग ईस्ट फेसिंग है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं उसकी फेसिंग ईस्ट है। जी जी। तो जो मेरा जो सेकंड फ्लोर जो घर का है, लाइक जो आप फर्स्ट फ्लोर लाइक जो है उसके बीचों बीच वॉशरूम है जी। तो मुझे उसके बारे में मालूम करना था मुझे। जो आपका बीच में वॉशरूम है वो स्टेयर्स के नीचे आता है या कैसे है? हाँ जी, स्टेयर्स के बिल्कुल साथ ही है, लाइक ऑलमोस्ट। देखिए, एक होता है स्टेयर्स की, जो हमारी स्टेयर्स जा रही हैं उसके नीचे आना, वहां पर होना, और एक होता है कि बिल्कुल उसके साथ में जो स्टेयर्स से थोड़ा अलग है। ये थोड़ा बताइए। हाँ जी, स्टेयर्स से थोड़ा सा दूर है। स्टेयर्स से दूर है। चीज क्या है कि जैसे जो नीचे से स्टेयर्स आ रही है, राइट? हाँ जी, उसके साथ है बिल्कुल, लेकिन जो ऊपर से जो स्टेयर्स आ रही है उसके साथ नहीं है, उसमें बीच में थोड़ा सा गैप है। उसमें थोड़ा सा गैप है। आप एक काम करिए, अगर सेंटर ऑफ द हाउस के बीच में अगर आता है, आप जहां पर बाथरूम है, बाथरूम के किसी भी कोने पे राउंड मिरर नीचे जमीन पे रख दें। राउंड मिरर नीचे जमीन पे रख दीजिए। एक कॉर्नर को ले लीजिए ताकि वो सेंटर पॉइंट को ऊपर तक उसको डेप्थ दे। अच्छा जी। छोटा राउंड मिरर आप मार्केट से ले सकते हैं। ध्यान से सुनिए, जो सेंटर पॉइंट में जहां पर आप बता रहे हैं कि बाथरूम है, उसके एक कॉर्नर पे जमीन पे उसको फिक्स कर दीजिए। ओके जी। ताकि वो पूरा रिफ्लेक्ट ऊपर सीलिंग को, छत को करे और डेप्थ मिल सके उस जगह को। ओके ओके ओके, दैट विल हेल्प यू। थैंक यू जी। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हाय, माय नेम इज मालविका एंड I have been listening to your show, but I want to know how you try to get them, like, what direction is it east, and how do you do that? What's the standard procedure for getting the dishas? Achha, you just want to know about the direction of the house, how to find the directions. Yes. The basic for finding about the direction, you have to stand at the entrance of your house. So a camping magnet will do, right? Yeah. You don't have to. You don't need to have a Vastu magnet. That is not necessary. That you can download on your mobile also. There is no necessity that you go for any magnetic. You can download on your that compass in your phone also. So the kids' bedroom, which direction should I be checking? What direction they sleep? Yeah. So shall I stand in the bedroom? No. First you have to stand at the entrance of your house and look outside. Okay. Then you will come to know that which direction you are facing or your house is facing. All right. Then second step you have to do, come to the center of your house. How would I know which is the center of that my house? That you can visualize by yourself, that where you're having the center point of your house. Okay. And then again you have to stand over there. Then look at the outside and divide your house into 4 parts. From that compass you will come to know where is the north, south, east and west. Okay. And in between these 4 directions, again there are the extended points. Those are northeast, southeast, southwest and northwest. And when you are standing at the center of your house, you will able to find out that in which direction you are having kitchen, where you are having bedroom, where you are having restroom. Oh, okay. And then do find out where the kids are sleeping, like yes, what direction should be their bed. Yes. Then you can wonderful. email me. Yeah, then you can email me. I'll give you the answer. And what's the ideal way they should be? I mean, when you said in one of the program, you said it should not be on the south. Their head should not be south. No, my dear. The head should be always on the south while sleeping. Oh, okay. The second option for the children is, the first is the south. The best direction is south. Then second option for the children is east. And for the elders, the second option is west. Oh, wonderful. Thank you so much. You're welcome. And let's take another caller. Yes, you're live on air. Hi. My kid's bedroom and the master bedroom is on the quadrant of west and north. That means somewhere in northwest and north. So is it good? Because I cannot see in those bedrooms. What should I do? See, if the children are having their bedroom in the northwest, that is not good.
हाँ, if a girl is for the marriageable age, that northwest is good for the girls. But north is very good for the boys. North or south? No, but these are girls actually. These are girls. Then they can sleep in north, but avoid northwest. Okay. Avoid northwest. But they are sleeping, keeping their head in the south. That is okay, but northwest bedroom direction is not good for the girls. Oh, okay. Okay, thank you. You're welcome. And Eva ji, tons of callers were there, but थोड़ा पेशेंस कम हो जाता है. बट कॉलर्स, यू कैन कॉल अस बैक अगेन. वी हैव फ्यू मिनट्स टू टॉक टू यू एंड रेवा जी वुड बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. एंड शी इज वास्तु कंसल्टेंट once again, and she has been in this field for more than 25 years. After the show, if you want to get in touch with her, call her at 510-868-3338. And if you don't want to call her, you have questions and you're still curious to know them, shoot her email. She would be happy to answer your email, divineabc@gmail.com, or you can call us in studio right now, 510-770-1550. And let's take some callers. Reva ji, hello, you're welcome. हेलो, आज तो बहुत लकी डे है. पहली बार में कॉल लग गई. यहाँ बहुत लकी डे है. जी हाँ, बताएं. मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे लिए मेरा जो बेडरूम है जी, उसमें जो एंट्रेंस है वो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए जी एंट्रेंस है, और बाथरूम जो है वो वेस्ट में है जी जी, और विंडो जो है वो वेस्ट में है जी. एंड देयर इज नो अदर वे टू पुट द बेड. जो हेड है वो साउथ में आता है. ठीक है जी. तो उसको इस असुविधा का क्या निवारण है? इस असुविधा का क्या निवारण है? निवारण तो आपको बहुत ही आसान है. आप ईस्ट की तरफ वेस्ट में जा रही हैं, ये तो बहुत ही अच्छा है. बेड आप साउथ की तरफ सर की सो रही हैं, बहुत ठीक है. अब प्रॉब्लम सिर्फ एक छोटी सी आ जाती है, वो है कि वेस्ट की तरफ हमारी विंडो भी है और वेस्ट की तरफ आप कह रही है रेस्ट रूम भी है. ठीक है, रेस्ट रूम है जो वेस्ट नॉर्थ की तरफ है बेडरूम में. देखिए, नॉर्थ वेस्ट की तरफ हेड है ना, जी जी, सिर है वो हमेशा साउथ की तरफ होता है. जबकि आपने अपने प्रोग्राम में कई बार बताया है कि सिर हमें नॉर्थ की तरफ रख के सोना चाहिए, साउथ की तरफ सर करके सोना चाहिए. और साउथ की तरफ? जी हाँ, नॉर्थ की तरफ कभी सर नहीं करना चाहिए. प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ विंडो की और वो रेस्ट रूम की प्रॉब्लम है. तो रेस्ट रूम आपका नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरी चीज यह है कि सर आप साउथ की तरफ सोएंगी, बहुत ही अच्छा है. नॉर्थ की तरफ सर करके बिल्कुल नहीं सोना चाहिए. जैसे कि हम शुरुआत में ही बात कर रहे थे कि शांति नहीं रहती, मन बेचैन रहता है. अच्छा जी हाँ. तो ये तो मैं तो वैसे ही परेशान होती थी कि मेरा सिर हमेशा साउथ की तरफ है. दूसरा ये कि जो मेरे बच्चे हैं उनके जो बेडरूम है उसमें उनका सिर जो है ईस्ट की तरफ रहता है हमेशा. बच्चों का सिर ईस्ट की तरफ होगा, दैट्स गुड, क्योंकि आपको सनलाइट एनर्जी है, ड्राइविंग फोर्स है, वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे. तभी मेरे बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं. ना जी, बिल्कुल, वो तो आपकी आवाज से भी लग रहा है और आप में भी एनर्जी काफी है, मुझे आपकी आवाज से बहुत लग रहा है. ऐसी कोई बात नहीं है. थोड़ा सा आप बस जहाँ वेस्ट की विंडो है उसकी तरफ जैसे है कि कोशिश यही करिए कि अगर हम उस विंडो को आफ्टरनून में 2 बजे के बाद में बंद कर देंगे तो ठीक रहेगा. एनर्जी ना ले वहां से, क्योंकि 2 बजे के बाद में यही लाइट, हाँ, उसको अवॉइड करें. और या वहां पर आप वुडन ब्लाइंड लगा दें. अगर आप लाइट लेना चाहती हैं थोड़ा कि अंधेरा नहीं लगे, तो आप वुडन ब्लाइंड, रेड कलर का जो रोज वुड वुडन ब्लाइंड होता है उसको लगाइए. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. यू आर वेलकम जी. रेवा जी, सब कॉलर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बट आई हैव प्रिविलेज यू आर सिटिंग राइट इन स्टूडियो एंड आई कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन. अगेन गोइंग बैक टू फिश एक्वेरियम, आपने बोला 9 से कम नहीं होने चाहिए. अगर 9 से कम है तो नाउ अकॉर्डिंग टू वास्तु व्हाट इज द रेमेडी? शालिनी, इसके लिए मैं देखो कोई गलत ऐसे रेमेडी तो मैं दे नहीं सकती हूँ कि अगर आपको बेस्ट रिजल्ट लेना है, एक चलाओ काम मत करिए ना, चलता चलता काम मत करें कि चलिए गंगा बह रही है लोटा भर ले हम भी, एक ऐसा नहीं, नॉट इट वॉन्ट बी लाइक दिस. अगर आप उसको प्रॉपर रिजल्ट चाहते हैं, हम पूरा फायदा लेना चाहते हैं, देन इट शुड बी शेप इज ऑल्सो डिपेंड्स. कि कई बार देखती हूँ कि राउंड गोल शेप होता है, ऑलवेज अवॉइड उसका शेप भी. अगर आप स्क्वायर या रेक्टेंगल देंगे, दैट्स गुड. रेक्टेंगल इज गुड. हाँ, रेक्टेंगल इज वेरी गुड. स्क्वायर या रेक्टेंगल देंगे तो आपकी जो घर की बाहर हमारी इम्प्रॉपर शेप्स होती हैं प्लॉट की, उसमें भी उसकी नेगेटिविटी को भी दूर करने में हेल्प करता है. अगर आपकी कभी भी फिशेज अगर मर जाती हैं तो इमीडिएटली उसको रिप्लेस करें, डोंट अवॉइड देम.
ये आप बहुत ध्यान रखें। अगर आप ये सब नहीं कर सकते तब मैं जरूर कहूंगी कि देन डोंट कीप फिशिंग। डोंट कीप फिशिंग। सो रेवा जी, टाइम तो हो चला है, बट आप जाने से पहले हमको कुछ टिप्स देके जाती हैं, एंड टिप ऑफ द डे एंड अ वीक, वी रियली लुक फॉरवर्ड टू इट, सो जस्ट लेट अस नो। मतलब आप टिप लेके मुझे कह रहे हैं कि बस जल्दी से टिप वी कैन टेक 1 or 2 कॉलर्स एंड द नंबर टू कॉल इन स्टूडियो इज 510-770-1550। अगर आपके पास भी सवाल है वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार के लिए तो जल्दी से कॉल कर दीजिए, और अगर नहीं है, बाद में बात करना चाहते हैं, तो नंबर भी आपने नोट कर ही लिया होगा। एंड वंस अगेन आई रिपीट 510-868-3338। या रेवा जी, व्हाट इज द टिप? जी हाँ, और अब मैं ये टिप देने के लिए जा रही हूँ कि किसी वजह से whenever you feel depressed and low or you feel tired, you may visualize a beam of white light entering your body from the crown of your body, the hair region. Visualize each and every part of your body, each and every nerve to be worked and polished by that white light. This white light is divine energy and can do miracles. जी हाँ, इस white light से पूरा फायदा उठाइए, सिर्फ only for 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes, face north. ये ध्यान रखिएगा, if you are facing to the north to get this energy, ये white light आपको बहुत अच्छे results देगी। And Reva ji, before I let you go, let's take one caller and let's see what question he or she has. Hello, you're welcome on air with Reva Kumar. Hi, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि किड्स का नॉर्थ वेस्ट में हैंड इफ वी कैन नॉट चेंज द बेडरूम, व्हाट कैन वी डू फिक्स इट? हाँ, yes, then there's no problem. You can fix up with, you can keep a crystal sitting elephant, a pair of crystal sitting elephant. जी, कहाँ पर रखें? कहीं पे भी, आप उनका रूम में कहीं पे भी रख सकते हैं, क्रिस्टल का सिटिंग एलिफेंट का पेयर। ओके, यू विल गेट रिजल्ट्स। एंड रेवा जी, मैं बताना चाहती हूँ, कई बार आपको बहुत सारे लिसनर्स कॉल करते हैं कि क्रिस्टल का सिटिंग एलिफेंट नहीं मिलता। फाइनली मुझे मिल गया, मेसीज हैव दैट, और आई गॉट फ्रॉम माय हाउस। टन्स ऑफ पीपल हैड दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। हाँ जी, सो अभी मेसीज से आई गॉट 1 पेयर एंड दे आर सेलिंग इट। और शालिनी, मैं ये भी शेयर करना चाहूंगी कि मैं दिसंबर 21 से दिसंबर 26 तक LA हूँ। अगर कोई भी स्केड्यूल करना चाहते हैं तो ये अपने किसी भी नियर डियर्स के लिए, समवन इज स्टेइंग देयर, इफ दे वांट माय सर्विसेज, if they need it, they all are most welcome. So December 21st to December 26th. So 5 दिन के लिए आप LA में होने वाली हैं। All lines are lit up, but क्या करें कि ये समय तो हमारा होके चल गया है। We cannot take it. Let's take one last caller and see who's this lucky caller. Hello, you're on air with Reva Kumar. Hi, good afternoon. I just have one question. I did not hear properly. So say something about crystal and elephant. Can you explain again? This is for what purpose? This is for the northwest room. If anywhere you're feeling instability, insecurity, emotionally, or your work or your career, to give stability to yourself, better to keep a pair of crystal sitting elephant in northwest bedroom. Crystal sitting elephant? Yes. A pair of crystal sitting elephant. Means it's like transparent elephant. Yes, exactly right. Oh, well, I just want to share with you. I went to the feng shui Chinese. They gave me. They told a long time ago. It's like 15 years ago in Hong Kong. Mm-hmm. So there's the Chinese that they call him as a Boma, but he said it's like 2 pair of elephants. So it's kind of Airawat. You know, what Indian we say Airawat? Yeah, Indian people say Airawat, but it should be the sitting, not standing. Oh, it should be sitting. Yeah, okay. It should be sitting. All right, thank you. You're welcome. Thank you. We can't take any more callers. Thank you so much for joining us today. And Reva ji, what message you have for our listeners? I know all lines are lit up, but the number to call her after the show, and yes, we are running out of time. The number to call her is 510-868-3338. So thank you so much, Reva Kumar, for being with us. And there is a thank you, शालिनी, और हमारे सभी लिसनर्स आपको भी बहुत बहुत थैंक्स, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए चलते चलते में।